The first topic is in grammar determiners. What is the determiners or determiners? What is the name of the first topic? Determiner or the determiner? समझ गए क्या है एक टॉपिक Yes, का sir. नाम ग्रामर का? Determiners. डिटरमाइनर्स और डिटर्मिनर्स. डिटरमाइन मीन्स जानते ही हैं. डिटरमाइन मीन्स क्या होता है? किसी चीज का नंबर और पर्सन को डिटरमाइन करना. एंड यू मस्ट नो द नेम सम ऑफ द डिटर्मिनर्स. फॉर एग्जाम्पल यू शुड नो द यूज ऑफ सम, any. First know this use of only. In Hindi, the meaning of some and any is the same. दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कुछ, कोई. But in English, there is difference. There is difference in the use. You should know the use of some. Some is used. Some is used in affirmative sentences. In affirmative sentences. Understand? Where is some used? Some is used in affirmative. Affirmative means क्या होता है? Opposite of affirmative is negative. जब हाँ वाला हो तो क्या होगा? Some is used in affirmative sentences. For example, she gave me some books. This is affirmative sentence, so some is used. Just opposite, any is used in negative sentences. Any is used in negative sentences. Understand? For example is she didn't see है ना. Note down, any is used in she didn't give me any flower. This is the use of some and any. First use. Again, I am repeating. Some is used in affirmative sentences. जो हाँ वाला sentence है उसमें some का use होगा. Any is used in negative sentences. The sentence in which not is used. She did not give me any flower. She did not ask me any question. She asked me some question. So, first use of some or any you have come to know. Some is used in affirmative sentences, whereas any is used in negative sentences. Understand? Yes, sir. कुछ क्लियर हुआ some और any का? Yes, sir. हाँ, आप लिख लिए इसको. Yes, sir. हाँ, some and any का यूज एक यूज हुआ, एक यूज. Some is used in affirmative sentences, whereas any is used in negative Negative sentences. सर Very थोड़ा good. नीचे कीजिएगा. रिपीट कर दें. हाँ, some का यूज affirmative sentence में होता है. जिस नहीं हाँ सर, जिस हाँ कहिए. लिखना आखिरी था. को लिखना है. यस सर. लिख लीजिए. Some is used in affirmative sentences, whereas any is used in negative sentences. She gave me some flowers. She gave me some
pens, she gave me some newspaper, and she did not help me, did not give me any type of help. She did not give me any flower, any book. So the sentence which is in negative, any is used. The sentence which is in affirmative, some is used. This is the first use. The second use is, have you noted down? लिख ली Yes, sir. लिख लिए Sir. हो गया Yes, sir. अब उसको वो लिस्ट बनाई बस आपको सब अब देखिए फर्स्ट यूज देख लीजिए इन इंट्रोगेटिव इफ द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव इज इन क्वेश्चन फॉर्म कैसे पहचानिए क्वेश्चन फॉर्म तो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है तो पहला नियम याद रखिए कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यू आर फ्री टू यूज आइदर सम और एनी दिस इज द बेसिक रूल एक रूल यह याद रखिए जब इंट्रोगेटिव हो तो आप किसी का यूज कर सकते हैं you are free to, in interrogative sentences interrogative sentences in interrogative sentences both some and any can be used किसी में कोई गलती नहीं होगी इंट्रोगेटिव में आप किसी का यूज कर दीजिए लेकिन बट इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है इट इज बेटर टू यूज इफ द सेंटेंस इज इफ द सेंटेंस is in interrogative plus negative form it is better to use अपोजिट कर लीजिए अगर क्वेश्चन है और उसमें निगेटिव लगा हुआ है पहला तो याद रखिए इंट्रोगेटिव है तो आप कोई भी यूज कर दिए लेकिन अच्छा होगा क्या इट इज बेटर टू यूज इफ द सेंटेंस इज इन क्वेश्चन प्लस निगेटिव फॉर्म इट इज बेटर टू यूज सम अच्छा होगा सम का यूज करना जैसे didn't she give you some advice इसी का अपोजिट है इफ द सेंटेंस इज इन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बट affirmative form नॉट नहीं लगा हो तो इट इज बेटर टू यूज एनी क्वेश्चन हो affirmative फॉर्म में हो डिड शी गिव यू एनी बुक फॉर एग्जाम्पल डिड शी गिव यू एनी बुक didn't she give you any advice इन इंट्रोगेटिव पहला तो याद रखिए कि कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन कहीं कहीं पर व्हेन यू हैव टू स्पीक इट इफ द क्वेश्चन फॉर्म इज इन नेगेटिव फॉर्म डिड शी नॉट इट इज बेटर टू यूज सम इफ द क्वेश्चन इज इन एफर्मेटिव फॉर्म एफर्मेटिव है जिसमें नॉट का यूज नहीं है तो उसमें अच्छा होगा एनी का वैसे आप कोई भी लगा सकते हैं क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव में पहला रूल हो गया यू कैन यूज एनी आइदर सम और एनी लेकिन इट इज बेटर इफ द क्वेश्चन सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म बट इट इज इन नेगेटिव इट इज बेटर टू यूज सम
If the interrogative sentence is in affirmative form, it is better to use any. इतना समझ गए? Yes, हो sir. गया? लिख लिए? लिख लिए? लड़की है तो लिख ली? Yes, sir. लिख हो गया ना? आगे बढ़े? Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, यह तो हो गया बेसिक रूल। एक्सेप्शन, exception, this is the basic rule. So you have come to know three rules. Some is used in, I'm again repeating, some is used in affirmative sentences, any is used in negative sentence, जहां हाँ वाला सेंटेंस है उसको some, जहां नॉट लगा हुआ है वहां any. इंट्रोगेटिव में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जहां मन हो some, जहां हो any. लेकिन कुछ ग्रामेरियर का कहना है कि नहीं, जब इंट्रोगेटिव हो निगेटिव फॉर्म में, इसका अपोजिट सम यूज कीजिए, इंट्रोगेटिव हो और एफर्मेटिव फॉर्म में हो तो अच्छा होगा एनी का यूज करना। अब देखिए बेसिक रूल क्या है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर एज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इसका अपवाद भी है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू दिस रूल। व्हाट इज द एक्सेप्शन? इफ द सेंटेंस इज इन affirmative form and if the sentence contains these words, अगर affirmative में हो लेकिन अगर सेंटेंस में यह वर्ड सब हो, कौन कौन वर्ड है? जैसे देखिए लिख लीजिए, विदाउट, विदाउट है, हार्डली है, हार्डली है, स्कार्सली है, स्कार्सली है, विदाउट है, हार्डली है, स्कार्सली है और प्रिवेंट है। और क्या है? प्रिवेंट, प्रिवेंट। तो एफर्मेटिव में होते हुए भी हम उसमें क्या लगाएंगे? एनी इज यूज। इफ द, लिख लीजिए, इफ द सेंटेंस इज इन एफर्मेटिव फॉर्म बट इफ द सेंटेंस कंटेन्स कौन कौन वर्ड? विदाउट, हार्डली, स्कार्सली, प्रिवेंट, तो उसमें हमेशा एनी इज यूज। क्या लगता है? एनी इज यूज, एनी इज यूज। कब? इफ द सेंटेंस कंटेन्स विदाउट, हार्डली, स्कार्सली, प्रिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैज या ही हैज, जो लिखे ही हैज हार्डली एनी मनी, he has hardly any money। देखिए दिस सेंटेंस, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है लेकिन हार्डली है, इसलिए हमेशा क्या लगेगा? he has hardly any money लग जाएगा। क्या लग जाएगा? any money, he has hardly any money लगेगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, some students, some students, students come to school, come to school without any knowledge। यह समझ गए कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में हो, सबसे इंपॉर्टेंट है यह, और सेंटेंस में यह 3 या 4 वर्ड है, विदाउट है, हार्डली है, स्कार्सली है लगा हुआ, तो हार्डली और स्कार्सली का एक ही मीनिंग होता है, शी हैज हार्डली एनी नॉलेज, शी हैज हार्डली एनी टाइम, सो एनी इज यूज। क्लियर हुआ? Yes, sir. हो गया? अगर सेंटेंस तो देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन रहता है। एफर्मेटिव में बच्चा जानता है, टीचर ही पढ़ाते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, सम इज यूज, अगर नॉट लगा हुआ है तो एनी इज यूज। तो यह इसमें बच्चा देखता है कि नॉट तो नहीं लगा हुआ है तो सम होगा, लेकिन नहीं,
अगर एफर्मेटिव में हो लेकिन यह वर्ड तो हो, विदाउट हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, प्रिवेंट हो, तो आंख मूंद के क्या लगाना है, एनी लगाना है। क्लियर हो गया। और Yes, sir. देखिए, और दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में हो लेकिन कंडीशन शो करता है, जैसे दूसरा एक्सेप्शन लिख लीजिए आप लोग कि इफ द सेंटेंस expresses condition, any is used, any is used। एकदम याद रखिएगा, if the sentence expresses या contains condition, कंडीशन कौन कौन है कंजंक्शन, तो आप जानते हैं कि अगर सेंटेंस में इफ लगा हो, इफ लगा हो, अनलेस लगा हो, इफ है, अनलेस है, वेदर है, WHEER। हाँ, इफ और वेदर का एक ही मीनिंग होता है। इफ अगर आपको पता नहीं चले कि वेदर द सेंटेंस एक्सप्रेसेस कंडीशन और नॉट, तो यह देखिएगा कि अगर सेंटेंस इफ से शुरू होता है या इफ लगा हुआ है और या वेदर लगा हुआ है, अनलेस लगा हुआ है, तो हमेशा एनी यूज होता है। इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस कंडीशन, एनी इज यूज। हमेशा यह दो याद रखिएगा एक्सेप्शन में। जैसे कम टू मी, फॉर एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, कम टू मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। देखिए यह सेंटेंस एफर्मेटिव में है, लेकिन एनी का यूज होगा, क्यों? क्योंकि दिस सेंटेंस कंटेन्स इफ, इफ कंडीशन शो करता है। हाँ, कम टू मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कम टू मी इफ यू हैव एनी अर्जेंसी, तो हमेशा एनी का यूज होगा। दो हो गया। और कुछ फ्रेज है, या तीन कंडीशन याद रखिएगा। कुछ फ्रेज है जिसमें एनी का यूज रहता ही है। इस बार का टेंथ का क्वेश्चन देखिए, उसमें फ्रेज का यूज किया है। हाँ, तो सीबीएसई के पेपर में तो अब इसमें क्या है, जैसे देखिए कुछ फ्रेज है उस पर लगा ही होता है एट, यह फ्रेज है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। दूसरा है एट एनी रेट, at any rate, come to me at any time, I want to buy this book at any rate। तो हमेशा इसमें क्या रहता है, एनी का यूज। तो आई एम समिंग अप, आप सम और एनी का यूज में फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में हो तो सम का यूज होता है, अगर सेंटेंस निगेटिव में हो तो, सॉरी, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में हो तो सम का यूज होता है, अगर सेंटेंस निगेटिव में हो तो एनी का यूज होता है। क्वेश्चन में आप कोई भी लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सम और एनी। देखिए अच्छा क्या होगा, अगर सेंटेंस, इफ द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म, उसका अपोजिट आप कर दीजिएगा सम का यूज। इफ द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव इन एफर्मेटिव फॉर्म, इट इज बेटर टू यूज एनी, और नहीं तो कोई भी लगा सकते हैं। एक्सेप्शन में तीन एक्सेप्शन याद रखिएगा। पहला एक्सेप्शन है कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव में हो लेकिन उससे विदाउट लगा हो, हार्डली लगा हो, स्कार्सली लगा हो, प्रिवेंट लगा हो, तो हमेशा एनी लगता है। दूसरा एक्सेप्शन अब बाद है, वह उसको याद रखना है, इफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस कंडीशन, इफ से शुरू हो, वेदर लगा हो, अनलेस लगा हो, इन केस लगा हो, इन केस, इन केस पे लिख लीजिए, इन केस, तो हमेशा क्या लगता है, एनी लगता है। कुछ फ्रेज है, तीन कंडी याद रखिएगा इस तरह से, कुछ फ्रेज इस पे एनी लगा हुआ है, एट एनी रेट, एट एनी टाइम, एट एनी आवर, एट एनी आवर, यह सब है, इसमें एनी रहता है। इस प्रकार आप समझ गए सम और एनी का यूज। अब आप नोट लिख लीजिए, नोट, नोट क्या है कि नेवर यूज,
नोट लिख लीजिए, नेवर यूज एनी विथ नो। नो के साथ एनी का यूज नहीं होता है, हमेशा किसके साथ होता है? नॉट के साथ। एनी इज यूज्ड ओनली विथ नॉट, नॉट के साथ, क्योंकि एनी नॉट एनी मीन्स नो। हमेशा नॉट एनी होता है, नो नहीं, नो एनी नहीं होता। सम दिस इज एरर में आपको रहेगा, एरर करेक्शन में। तो हमेशा या तो नॉट एनी लिखिए या नॉट एनी मिलके नॉट एनी इजकल टू नो होता है, या तो केवल नो लिखिए, देयर इज नॉट एनी हाई स्कूल इन दिस विलेज, या देयर इज नो हाई स्कूल इन दिस विलेज, देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास, या लिख सकते हैं देयर इज नो स्टूडेंट इन दिस क्लास। इन दिस वे you have come to know the use of first determiner some और any। सम और any का यूज हम पढ़ा दिए हैं। अब इसी में डिटर्मिनर में कौन कौन है आप लिख लीजिए, पहले किसका किसका यूज पढ़ना है। कम से कम, मिनिमम, है तो बहुत, लेकिन आपको 10th में पढ़ना है, वह लिख लीजिए। पहला है सम, दूसरा है एनी। हाँ, हम लिख देते हैं, इसका इसका यूज आपको पढ़ना है। पहला हो गया सम, दूसरा हो गया एनी, तीसरा हो गया मच, चौथा हो गया मेनी, इसके बाद है फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द लिटिल और मेनी मेनी ए। इतना मिनिमम पढ़ना है। और आर्टिकल, आर्टिकल्स आर ऑल्सो डिटर्मिनर। आर्टिकल जो है ए एंड द आर्टिकल, वह भी है पढ़ना, या डिटर्मिनर में आता है। तो किसका किसका पढ़ना है? सम का यूज, एनी का यूज, मच का यूज, मेनी का यूज, फ्यू का, अ फ्यू का, द फ्यू का, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसके बाद है मेनी ए, मेनी ए एक साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, अगले साल इस क्वेश्चन रहेगा ही, मेनी ऑ वाला 1 मार्क्स का। और आर्टिकल्स जितने हैं ए एंड द, आप लिख लिए इसको, फिर से अच्छा से नोट बना के अभी हम इसको डालेंगे, कि इसको आप देख लीजिए। कुछ समझे सम और एनी का? यस सर। सम और एनी क्लियर हो गया। और आप दूसरा समझ गए कि कितने डिटर्मिनर हमको पढ़ना है, कम से कम। ये भी लिख लिए, सम एनी, अगेन आई एम रिपीटिंग, सम एनी मच मेनी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मेनी एंड जितना भी ए एंड द है आर्टिकल है, इसका आप यूज पढ़ना है आपको। यह हो गया ग्रामर का टॉपिक, समझ गए? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, सो एंड आपको अब पढ़ना है, यह हो गया ग्रामर का। इसमें आप फिर पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में। और जितना है यूज, जैसे मच का देख लीजिए, मच में नहीं पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, मच इज यूज, मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मच इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब
आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इसको तो समझते हैं। एक बच्चा कोई बोलो तो किससे हम काउंटेबल कहते हैं? जिसे हम गिन बोलिए। सकते हैं सर। अच्छा, जिसे गिन हम गिन सकते सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं। हैं सर। आज अनकाउंटेबल, जिसे जिसे नहीं नहीं गिन गिन सकते सकते। सर। वाह, अनगिनत। वेरी गुड। अनगिनत, वाह रे वाह। अब देखिए, तो डॉट डॉट मनी इज नीडेड, समझ गए? डॉट डॉट मनी खाली जगह है और उसमें भरना है मच और मेनी। तो इसमें मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? बताइए। काउंटेबल। हाँ, काउंटेबल। काउंटेबल। क्या है? काउंटेबल। काउंटेबल। हाँ। अब जो यह आप जो डिफिनीशन जानते हैं, बुक में भी यही लिखा हुआ है। 99% आपको यही पढ़ाएंगे कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे? द नाउन्स विच जिसे नहीं कांट गिन बी सकते। काउंटेड। वाह, वेरी गुड। अब इस नियम को भूल जाइए, समझ गए? यह इसका हिंदी में मीनिंग हो गया, डेफिनेशन नहीं हुआ बाबू। हाँ, काउंटेबल नाउन। अब हम हमारा जो डेफिनेशन है वह याद रखिएगा कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? वह नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे बॉय है तो बॉयज होगा, गर्ल है तो गर्ल्स होगा। हाँ, वह नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन्स विच हैव प्लूरल फॉर्म्स आर काउंटेबल नाउन। गिना या नहीं गिना है? और द नाउन्स विच डोंट हैव द प्लूरल फॉर्म्स आर अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए? मनी है, मनी का मनीज नहीं होता है, इसलिए मनी मनी। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। समझ गए? नहीं तो थोड़ा इतना चावल ले आया कोई, थोड़ा सा गिन दिया तो कहेगा थोड़ा चावल काउंटेबल हो गया, एक बोरा अनकाउंटेबल नहीं। राइस है, मिल्क है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन। अगेन आई सर एम रिपीटिंग। लिखा दीजिए सर। हाँ, लिख लीजिए। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच हैव प्लूरल forms plural forms are called countable nouns. The nouns which have plural forms are countable nouns. और दूसरा लिख लीजिए, the nouns which don't have the plural forms are uncountable nouns. वह नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। वह नाउन जिसे का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। गिनती वाला चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो मनी वाला में कहेगा हम गिन सकते हैं। नहीं, मनी, आप पढ़े हुए इकोनॉमिक्स में, मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम ए मेजर ए स्टैंडर्ड स्टोर। हाँ, मनी इज ए मैटर ऑफ, इज इकोनॉमिक्स से पढ़े होइएगा हमेशा। आर में अगर होता था मनी का मनीज नहीं होता है। समझ गए? तो आप मच इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप देख लीजिए एग्जाम्पल, मच sugar is needed. Much sugar is needed. He has much knowledge. Much money is required. Understand? अब देखिए, many is used before, many is used before countable noun. Before countable. Countable noun. Many is used before countable noun. Example देख लीजिए, there are
many teachers, there are many students, there are many students. समझ गए? मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले और मेनी का होता है काउंटेबल नाउन के पहले। इसमें भी नोट लिख लीजिए, नोट, NOTE, नोट। अगर आपको पता नहीं चले कि वेदर द नाउन, और हमेशा देखिएगा कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन के पहले आता है, डिटर्मिनर, क्योंकि डिटर्मिनर्स डिटरमाइन द नंबर एंड पर्सन ऑफ नाउन। नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, यह डिटरमाइन करता है, इसलिए इसका नाम है डिटर्मिनर। ER जब लग जाता है किसी वर्ब में, आप एक पढ़ाएंगे आपको आगे, एक टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, उसमें पढ़ाएंगे आपको कि आप अपने से नया वर्ड बना सकते हैं। पहला मेथड तो आप जानते हैं, पहला मेथड क्या है? बाय यूजिंग प्रेफिक्स। प्रेफिक्स जानते हैं, तो किसी वर्ड के शुरू में लगता है प्री, मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स होता है, प्री मैरिज, प्री बोर्ड, बोर्ड है अब प्री लग गया था, प्री बोर्ड। तो ऐसा प्रीफिक्स किसे कहेंगे? प्रेफिक्स इज ए, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। प्रेफिक्स इज ए सिलेबल which is added in the beginning of a new word to form a new word। कोई हैप्पी है, अन लगा दीजिए तो अनहैप्पी हो गया, नहीं, करेज है, डिस लगा दीजिए, डिसकरेज हो गया। उसी प्रकार सफिक्स है, सफिक्स किसे कहते हैं? सफिक्स इज ए सिलेबल which is added at the end of any word to form a new word। जैसे होप है, आप प्लस लेस लगा लीजिए, होपलेस हो गया, नहीं। इसी प्रकार बहुत से दो चार मेथड है जिसके द्वारा आप नया, एक है ER लगा के, जब वर्ब में ER लगता है तो नाउन बन जाता है। वर्ब में ER लगता है, टीच है, ER लगा दीजिए सफिक्स, क्या बन गया? टीचर। लव है, लवर। लुक है, लुकर। हाँ, जो भी यह वर्ड फॉर्मेशन का है, ये अपने से पहला दो मेथड आप जानते ही हैं, फिर पढ़ाएंगे। पहला मेथड क्या है कि बाय यूजिंग प्रेफिक्स, दूसरा मेथड क्या है? बाय यूजिंग सफिक्स। एक मेथड है उसका नाम है क्लिपिंग मेथड, क्लिप नया चला है अब रिसेंटली। हाँ, जैसे कोई दो वर्ड है, क्लिप मान होता है काटना, कुछ दो वर्ड को लिया, कुछ इसका ले लिया काट दिया, कुछ उसका काट के नया वर्ड बना देता है। जैसे आप देखिएगा लिखा रहता है बहुत जगह होटल, आजकल चला है लिखा रहता है मोटेल, मोटेल। अब लोग समझता ही नहीं मोटेल का, तो नया मेथड से बना है मोटरिस्ट होटल। कुछ वर्ड मोटरिस्ट का ले लिया, कुछ होटल का ले लिया, नया वर्ड क्या बन गया? मोटेल। मोटरिस्ट होटल इज कॉल्ड मोटेल। उसी प्रकार देख लीजिए, आप है ब्रेकफास्ट है और लंच है, तो कुछ ब्रेकफास्ट का ले लिया, कुछ लंच का ले लिया, क्लिक करके अब बना दिया ब्रंच। यू आर इनवाइटेड ओवर ब्रंच। ब्रंच एक क्लिपिंग मेथड है। तो तीन मेथड आप जानिए। पहला मेथड है आपका बाय यूजिंग प्रीफिक्स, दूसरा है बाय यूजिंग सफिक्स, तीसरा है बाय क्लिपिंग। इसी प्रकार आप अब उसको पढ़ाएंगे डिटेल, बहुत सारे टॉपिक है, आपको जो टॉपिक पढ़ना है अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक है, लिख लीजिए पहले सिलेबस। बिहार बोर्ड का भी अलग से और CBSE का बोर्ड, उससे ग्रामर सबका एक ही होता है। पोएम में अंतर हो सकता है, कुछ इसमें पोएम है, जैसे इसमें है आपका CBSE में 10th क्लास में पहला पोएम का नाम जानते हैं? CBSE का बच्चा बताओ तो। पहला पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यही ना है? क्या है? डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो सबसे, हाँ, एकदम छोटी कविता है, इतनी बड़ी है, डस्ट ऑफ स्नो, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। और दूसरा है फायर एंड आइस, वह भी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। इस प्रकार और से पोएम है। तो आप पोएम, तो इसका एक नोट लिख लीजिए पहले, नोट, नोट लिख लीजिए। आफ्टर मच, आफ्टर मच सिंगुलर फॉर्म ऑफ, सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन एंड सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज। सिंगुलर फॉर्म
of verb, हाँ, use और a, हाँ, और use। अगर पता नहीं चले कि यह नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो देखिएगा कि मस्ट के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में होगा, और वर्ब भी सिंगुलर, इज, वाज, वेयर नहीं होगा, हमेशा आफ्टर मस्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। अब वही लिख लीजिए, आफ्टर मेनी, आफ्टर मेनी प्लूरल फॉर्म ऑफ, प्लूरल फॉर्म ऑफ noun and plural form of verb use। हमेशा याद रखिएगा इस नोट को कि मस्ट के बाद जो नाउन होगा वह भी सिंगुलर फॉर्म में और वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में। मेनी के बाद हमेशा जो नाउन होगा वह भी प्लूरल फॉर्म में, मेनी चिल्ड्रेन, मेनी टीचर्स, मेनी बुक्स, और वर्ब भी या किसमें होगा, प्लूरल फॉर्म में। इन दिस वे यू हैव कम टू नो the use of some, any, you have come to know the exception, you have come to know the use of much and many, you have also come to know the point which you have to keep in mind, that always keep in mind that after much singular form of noun and singular form of verb is used, whereas after many plural form of noun. There many boys have come to school। यह आपका ग्रामर का आज का हो गया टॉपिक, हाँ, लिख लिए इसको इतना। अब फिर आपको होमवर्क देंगे, दिस इज द बिगिनिंग फर्स्ट क्लास। तो आपको अब देखिए यह ग्रामर का हो गया, इतना समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें, सम मेनी मच मेनी में? नो सर। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, यस इसका सर। आपको देंगे नेक्स्ट क्लास में होमवर्क। अब देखिए पोएम पढ़ने के लिए, पोएम आपको पढ़ना है, तो जो भी बुक है उसमें दो भाग में बांटा हुआ है। अब किताब की बात है, ग्रामर छोड़ दीजिए, अब यह ग्रामर का टॉपिक आज इतना ही रहने दीजिए। अगेन कीप इन माइंड दैट यू हैव कम टू नो द टीचर टुडे आई हैव टॉट यू द यूज ऑफ सम एंड एनी एंड मच एंड मेनी, and in the next class other determinants would be discussed and questions would be drilled। आपको पोएम पढ़ना है। पोएम में आप जानते हैं कि जो कम से कम 6 फिगर्स ऑफ स्पीच, आप नाम सुने हैं, क्या नाम है? फिगर्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का यह किताब का हो गया, बिहार बोर्ड और दोनों के लिए है, फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट है, या 2 या 3 मार्क्स का रहेगा, फिगर्स ऑफ स्पीच। इसका दूसरा नाम भी है, कभी कभी पूछ देता है, बच्चा नहीं समझता है। एक नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच, दूसरा नाम है पोएटिक डिवाइस। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं नहीं, फिगर्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच अलग होता है बाबू, ग्रामर में होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वो पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको पोएम में आप पढ़ना है, लिटरेचर में क्वेश्चन पूछेगा, लाइन दे देगा और कहेगा व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन। तो आप इसलिए समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। फिगर्स पहला नाम क्या है, इसका नाम पहले याद कर लीजिए, फिगर्स ऑफ स्पीच टॉपिक का नाम हुआ। इसका 3 नाम है, फिगर्स ऑफ स्पीच, दूसरा नाम है पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, तीसरा नाम है, तीनों नाम एक ही हुआ, लिटरेरी डिवाइस। तीन नाम है, पहला नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच, दूसरा इसी का नाम है, क्वेश्चन एक ही रहेगा, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन, पोएम का लाइन दे देगा। या उसी क्वेश्चन को पूछ सकता है
कि which poetic device has been used in this line, या पूछेगा which literary device has been used in this line. Question is the same, तीनों एक ही नाम है. हाँ, आप जान लीजिए यह तीनों एक ही नाम है. अब पोएम में पहला का नाम सुने होंगे, किसी फिगर ऑफ स्पीच का नाम सुने हैं अभी तक? नाइन्थ पे पढ़ा होगा, पोएम पढ़ा No है, sir. No sir. नहीं सुने हैं? अच्छा, नहीं. आज सुन लीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट, यह जो नहीं सुना वो पोएम नहीं समझ सकता है. पहले तो यह जान लीजिए. जैसे आप नाइन्थ में सीबीएसई में पढ़े होइएगा, पहला पोएम है द रोड नॉट टेकन, पढ़े हैं? पहला पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हाँ, आप नाइन्थ में पढ़े हैं स्लम्बर डिड माई स्पीड स्टिल, सबसे छोटी कविता है. हाँ, नाइन्थ में पढ़े होइएगा स्लम्बर डिड माई स्पीड, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता Yes, sir. है ना, पढ़े हैं ना? अभी देखिए Yes, नाइन्थ में पढ़े. हाँ, स्लम्बर डिड माई स्पीड स्टिल, नो ह्यूमन फियर, शी seemed a thing that could not feel the touch of earthly ear. No Yes, sir. motion has she now, no force, she neither hears nor sees, rolled around in earth's garner course with rocks and stones and trees. अब देखिए, एक ही इसका टाइटल देगा स्लम्बर डिड माई स्पीड स्टिल. कौन पोएटिक डिवाइस है बताइए तो? किस लाइन में? पहला ही लाइन है या टाइटल भी है स्लम्बर डिड माई स्पीड स्टिल. कौन पोएटिक डिवाइस है? हाँ, तो आप नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए. तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच में पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी, आप जानते हैं, हम पढ़ाएंगे तो कहें सर जानते हैं, पहला का नाम है सिमली. नाम सुने हैं ना? SIMILE, सिमली. पहला फिगर ऑफ स्पीच, इसका यूज जानना है और पहचानना कैसे पहचानते हैं. पहला का नाम समझ गए? नाम सुने? क्या है नाम? Okay. सिमली. क्या है? हाँ, सिमली, स्माइली नहीं. क्या है नाम? सिमली. Simile. हाँ, पहले समझ लीजिए, इसमें किसी का कंपैरिजन किसी से होता है. उससे तो है कि लिविंग का नॉन लिविंग से, लेकिन उससे मतलब भी नहीं. अभी पहले यह समझिए, इस कंपैरिजन का मीनिंग जानते हैं? तुलना. हाँ, व्हेन कंपैरिजन इज मेड, जब तुलना किया जाता है और यह कंजंक्शन लगा हो. व्हेन कंपैरिजन इज मेड, लिख लीजिए, व्हेन कंपैरिजन इज है मेड विथ द यूज ऑफ फॉलोइंग कंजंक्शन. CON है या CON, JUNCTIONS. क्या है? When comparison is made with the use of following conjunctions. कौन कौन कंजंक्शन है तो देख लीजिए, as डॉट डॉट एज, दूसरा है डॉट डॉट एज, तीसरा है लाइक. जब कंपैरिजन हो और सेंटेंस में यह किसी एक का एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज या लाइक का यूज हो, तब क्या हो जाएगा? कौन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? सिमिली. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, आप देखे होइएगा, ही इज एज ब्यूटीफुल एज द मून. देखिए, सी कोई लड़की है, सीता, गीता, मीता, प्रीता कोई है. शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून. उसकी तुलना किससे की गई है? मून से. Moon से. और कंजंक्शन का यूज है. कौन कौन कंजंक्शन? एज डॉट डॉट एज, माने डॉट मतलब उस दोनों एज के बीच में कोई वर्ड रहेगा. एज डॉट डॉट एज का यूज है. देखिए, एज डॉट डॉट एज का यूज है, इसलिए कौन फिगर ऑफ स्पीच हो गया? Simile. सिमिली.
और जैसे देखिए आप इस सेंटेंस को लिखिए और कहिए कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है कि नहीं, यस या नो बोलना है। जैसे हम कहते हैं ही इज एज क्रूएल एज ए टाइगर, क्या है सेंटेंस, ही इज एज क्रूएल CRUEL एज अ टाइगर, इसमें सिमिली है कि नहीं, है सर। है ना। एज डॉट डॉट एज का है, ही इज एज क्रूएल एज ए टाइगर, है ना। शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, तब क्या हो जाएगा सिमिली। या शी इज सो ब्यूटीफुल एज द मून, शी इज लाइक द मून, या भी तीनों सेंटेंस में सिमिली है। शी इज सो ब्यूटीफुल एज द मून, ही इज एज क्रूएल एज ए टाइगर, ही इज सो क्रूएल एज ए टाइगर, ही इज लाइक ए टाइगर। In all the sentences, you see that there is the use of which figure of speech? Simile has been used. अब समझ गए सिमिली का यूज, जब कंपैरिजन हो और उसमें कंजंक्शन लगा हो, कौन कौन कंजंक्शन लगा हो, तो डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज और लाइक लगा हो, तब कौन फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली Simile. होगा, सिमिली, है ना। माई लव इज लाइक, विलियम वॉटफोर्ड ने लिखा है माई लव इज लाइक, उससे पूछा कि हाउ इज योर लव, किसी लड़की से प्यार करते थे, पूछा, उन्होंने पोएम लिख दिया, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, लाइक लगा हुआ है, नहीं तो कौन सी हो गया, इसमें हो गया कौन फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सिमिली Simile. हो गया। और फिर आपका पोएम हम लेंगे, पोएम का लाइन पढ़ेंगे और उसमें बताएंगे कि आप कौन फिगर ऑफ स्पीच है। तो सिमिली क्लियर हो गया, सिमिली में कोई दिक्कत Yes. करते हैं, हो गया कि लिखिए, हो गया ना No. सिमिली। अब देखिए मेटाफर, देखिए क्या, Yes, इसी sir. का भाई दूसरा मेटाफर है, इसी का भाई है, उसका नाम है मेटाफर, मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर का स्पेलिंग लिख लीजिए, METAPHOR, मेटाफर। अब देख लीजिए सिमिली और मेटाफर का एक ही काम है, द फंक्शन ऑफ सिमिली एंड मेटाफर इज द सेम, दोनों का एक ही काम है। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिमिली एंड मेटाफर, दे आर यूज टू मेक कंपैरिजन, दे आर यूज टू मेक कंपैरिजन। लेकिन सिमिली में और मेटाफर में अंतर क्या है, फंक्शन इज द सेम, दोनों भाई ही है, लेकिन सिमिली में क्या होता है, कंपैरिजन इज मेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। इन मेटाफर देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन, देयर इज डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन, कोई कंजंक्शन, नो कंजंक्शन इज यूज, लिख लीजिए नो कंजंक्शन, नो कंजंक्शन इज यूज, कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। जब जैसे ही इज, सी इज अ मून, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, ही इज अ मून, ही इज अ, ही इज अ टाइगर, इसमें कंपैरिजन है लेकिन कंजंक्शन का यूज नहीं है, इसलिए कौन फिगर ऑफ स्पीच हो गया, Metaphor. मेटाफर हो गया, है ना। ही इज ए टाइगर, ही इज ए टाइगर, तब क्या हो जाएगा, यह सिमिली और मेटाफर हो गया, मेटाफर हो गया। हाँ, सिमिली और मेटाफर दो हम पढ़ा दिए। हाँ, और फिर इसको डिस्कस करेंगे। मेटाफर, कंपनी कंपैरिजन इज मेड विद द हेल्प ऑफ, इन विदाउट कंजंक्शन, विदाउट कंजंक्शन। और इसमें क्या होता है, आप देखिए तीसरा है, दो समझ गए, सिमिली और मेटाफर। Yes, sir. सिमिली, हाँ, सिमिली इन कंपैरिजन इज मेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, कौन कौन कंजंक्शन है, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज और लाइक है। मेटाफर का भी वही फंक्शन है, कंपैरिजन इज मेड, बट कंपैरिजन इज मेड विदाउट द यूज ऑफ कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। और तीसरा देखिए, हाँ, एलिटेरेशन, एलिटेरेशन, एली, यह तीसरा है फिगर ऑफ स्पीच,
तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है। हाँ, एक हो गया सिमिली, दूसरा हो गया मेटाफर, तीसरा है एलिटरेशन। एलिटरेशन कैसे समझिएगा? तो इफ एनी लाइन, if if any word in a line begins with consonant letter, and with the same consonant, same consonant, the same consonant minimum two words begin with the same consonant letter। और देखिए कोई सर भी थोड़ा लाइन है, समझ जाइए तब क्लियर होगा। कोई भी लाइन है, इसमें कोई वर्ड 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, सर 5 थोड़ा नीचे वॉवेल है। कीजिए, लिख रहे हैं। हाँ, हाँ, थोड़ा 5। नीचे कीजिए, लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, कॉन्सोनेंट। हाँ, लिख भी लीजिए, एग्जाम्पल जैसे देते हैं तो आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, बस 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 हो गया सर। It would work them। ओ, लिख लिए? हाँ, अब देखिए क्या करेंगे। If in any line any word begins with the consonant, any word, first word, second word, any word, and with the same consonant, minimum 2 words, maximum there is no limitation, maximum कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 वर्ड उसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, इट वुड वर्क देम ओ। अब देखिए डब्लू, डब्लू और डब्लू, 3 वर्ड डब्लू से शुरू है। डब्लू क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस लाइन में कौन फिगर ऑफ स्पीच हो गया? कौन हो गया? लिटरेशन। एलिटरेशन। वेरी गुड। और एलिटरेशन याद करने के लिए आप यह लाइन रख लीजिएगा। हाँ, क्या है? हाँ, लाइन फेयर, फेयर ब्रिज ब्लू व्हाइट फोम, फोम इसी का है यहाँ, यहाँ है फोम, ये रबर है। हाँ, व्हाइट फोम फ्लू, व्हाइट फोम, ये ना ओ, एक ही आ गया। फ्लू, फेयर ब्रीज ब्लू व्हाइट फोम है, FOAM है या FOAM फ्लू फरो
followed free. We were the first that ever burst into the silent sea. देखिए यह एक पहला लाइन है एयर ब्रीज ब्लू व्हाइट फोम FOAM फ्लू। नेक्स्ट लाइन है फर्रो फॉलोड फ्री। थर्ड लाइन है वी वेयर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट। Next line है into the silent sea. This is the best example of alliteration because you see that in each and every line there is the use of alliteration. जैसे देखिए fair, fair का देखिए F, फिर देखिए foam FOAM F, फिर देखिए flew का F, फिर देखिए breeze का B, अब blue का B, क्या हो गया इस लाइन में एलिट्रेशन। फिर देखिए फर्रो एफ 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 स्क्वायर ही चाहिए FQ है यहाँ पर, है ना। तीन दो ही होगा तो हो जाएगा F, लेकिन तो तीन है मिनिमम दो। उसी कॉन्सोनेंट लेटर से इस लाइन में कहीं भी पहला वर्ड जरूरी नहीं है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी। फिर देखिए वी बेयर W वी बेयर। फिर देखिए S. In each and every line, there is the use of alliteration. So, if you want to remember alliteration, this is the best example of alliteration because in each and every line there is the use of alliteration. Again, I am repeating. If you have any problem in writing, fair breeze blue, white foam flew, furrow followed free, we were the first that ever burst into the silent sea. So this is the alliteration. In the poem also, in the first poem of your book, the name of the first poem in CBSE, the name of the first poem is Dust of Snow. Dust of Snow देखिएगा, Dust of Snow में आप देखिएगा कि सेकेंड स्टैंजा जो है, सेकेंड स्टैंजा उसका जो पहला लाइन है उसमें एलिट्रेशन का यूज है कि नहीं बताइए आप। आई एम राइटिंग द लाइन हैज गिवन माई हार्ट, HART हार्ट पढ़िएगा, अधिकांश लोग हॉर्ट पढ़ते हैं, नहीं हार्ट पढ़ते दुख तकलीफ, हाँ हार्ट HART। हैज गिवन माई हार्ट, यह आपका फर्स्ट पोएम का जो CBSE का सेकेंड स्टैंजा है उसका पहला लाइन है, क्या है हैज गिवन है GIVEN, गिवन माई हार्ट। अब देखिए इज देयर द यूज ऑफ एलिट्रेशन और नॉट? यस सर। कहिए तो है कि नहीं, क्यों है बताइए तो। देखिए H है फिर H है, दो बार यूज है H का, H कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या हो गया, कौन फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एलिट्रेशन। वाह वेरी गुड एक्सलेंट वाह। अब देखिए उसके स्टैंजा का आपका थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन एंड, आप बुक में देखिएगा, अगर बुक है तो निकाल लीजिए नहीं तो देखिएगा। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें है कि नहीं देखिए तो एलिट्रेशन है। यस सर। क्यों है सर सेव्ड एस और सम एस कांस्टेंट सेम है। वाह अरे भाई बहुत तेज लड़का है। व्हाट इज योर नेम? सर मोनू। अरे मोनू जी बहुत अच्छे हैं आप। यही क्वेश्चन रहेगा। हाँ टेंथ जो है बोर्ड जो है हवा नहीं है, आपका टेंथ का क्वेश्चन देखिएगा लगेगा कि बच्चा वाला है, अरे
लड़का सब पैसा दे के आज छत पर उसका दिल उछल गया। हाँ, पढ़ना तो नाम है, थोड़ा सा छोटा सा काम है, फिर बड़ा आराम है। एक समझ लीजिए बेसिक। तो यह फार्मूला है कि मान यह आपको मैंने पढ़ाया है। इन ईच एंड एवरी पोएम मिनिमम आपको 6 या 7 है, 7 आप फिगर ऑफ स्पीच फार्मूला समझ लीजिए और कहीं पर अप्लाई। जैसे हम लोग 10th में थे तो हम लोग के आपके सर पढ़ाते हैं, पढ़ाए थे हम लोग को भी, बस हमको नहीं आता है। a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। फार्मूला याद हो गया, 4a + 5b रहे जो रहे मारिए उसको। तो दिस इज द फार्मूला। तो अगेन आई एम समिंग अप दैट इन फिगर ऑफ स्पीच, फिगर कोई पूछेगा व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच, पोएट्री क्या है? अरे पोएट्री का डेफिनेशन, पोएट्री पढ़ना चाहिए, है ना। पोएट्री, पोएट्री को याद करना चाहिए। पोएट्री क्या होता है? व्हाट इज पोएट्री? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और इसको हम बताएंगे फिर क्या होता है। तो पोएट्री समझने के लिए पहला फॉर्मूला है कि आपको पोएटिक डिवाइस यानी लिटरेरी डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच जानना चाहिए। तो आप 3 हम समझने का आपको कोशिश हम किए हैं पढ़ाने का। पहला क्या है? आई एम समिंग अप, सिमिली। सिमिली में क्या होता है? प्रायः लिविंग का नॉन लिविंग से होता है, प्रायः, कभी कभी सिमिलर भी होता है। और कंपैरिजन इज मेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। कौन कौन कंजंक्शन है? एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज और लाइक है। नहीं, आप यहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं मोनू जी? तेघरा। तेघरा? अरे तब तो तुम यहाँ का है, तेघरा का। तेघरा के रहने वाले हैं। तो आप देखिएगा जितना भी है, इंग्लिश ही नहीं हिंदी, मैं यहाँ का मैथिली लैंग्वेज है, दरभंगा का नाम सुना होगा, मैथिली। वहाँ के बहुत बड़े कवि है विद्यापति, उनकी जो कविता है, हाँ, वह ये समझने के लिए सिमिली सबसे बेस्ट, इंग्लिश नहीं है, सबसे अच्छा वह कविता है उनकी, विद्यापति की कविता। तोहर बदन सम चांद होत नहीं, कयो जतन विधि केला, कई बेरी काटी बनाओल फेरी फेरी तैयो तुलित नहीं खेला। अब इन ऑल द लाइन्स देयर इज द यूज ऑफ सिमिली। बच्चा को सिमिली समझाने के लिए यह सबसे बेस्ट है, यह पोएम। और आप जान लीजिए कि आप सिमिली में हो गया, और कंजंक्शन का यूज होता है। मेटाफर में क्या होता है? मोटा भाई है, मेटाफर है। सिमिली लीन एंड स्लिम है, इसलिए कंजंक्शन का। मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन इज मेड विदाउट द यूज ऑफ कंजंक्शन। ही इज अ टाइगर, शी इज ए मून। हाँ, और एलिट्रेशन में क्या होता है? इन द सेम लाइन एनी वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट एंड विद द सेम कॉन्सोनेंट मिनिमम 2 वर्ड शुड बिगिन, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिटेशन। जैसे एग्जांपल है आपके पोएम में पहला है हैज गिवन माय हार्ट, हाँ, हैज एच एच, फिर एंड सेव्ड सम पार्ट, हाँ, एस एस। और एक हम बताए हैं दूसरा एग्जांपल, और दूसरा बताया है तीसरा एग्जांपल, इट वुड वर्क देम ओ, इट वुड वर्क देम ओ। और सारे बहुत सारे इन ऑल द पोएम देयर इज द यूज ऑफ एलिट्रेशन। तो थैंक यू वेरी मच, हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई प्रॉब्लम होगा इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। थैंक